Jai Hind, my dear students. So, welcome to economics class. Dear students, we have already completed the chapter People as a Resource. And now, today, I will revise the chapter. So, please open your book and please listen each and everything carefully. Because the first chapter, the story of village Palampur, and second chapter, people as a resource, both will come in your half yearly exam. That's why listen each and everything carefully. So let's start revision of second chapter, people as resource. People as resource. So dear students, in this chapter, the chapter People as a Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. पीपल एज रिसोर्स ये चैप्टर है जिसमें आपको ये समझाया गया है कि पॉपुलेशन जो है वो किसी इकोनॉमी के लिए असेट हो सकता है रादर देन अ लाइबिलिटी। और वो किसी इकोनॉमी के लिए असेट कैसे बनेगा? सो देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ, उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, investment in form of education, so form of education, after that medical care, and training. So when investment is made in population in terms of education, medical care and training, then the population will be an asset for the economy. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. So, dear students, people as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. People as a resource ये किसी भी कंट्री के वर्किंग पीपल को रेफर करती है। उनका प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है। सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट emphasize its ability to contribute to the creation of the gross national product. जब हम पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं, उसकी एबिलिटी की तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना वो शेयर कर रहा है, कितना वो क्रिएट कर रहा है। एंड अदर रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। This is the positive side of a large population
that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facility. डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम केवल उनका निगेटिव साइड देखते हैं. क्या निगेटिव साइड देखते हैं? कि इफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज, देन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल अराइज. प्रॉब्लम्स लाइक problems of food, education and access to health facilities. And when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. और जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, ज्यादा वो हेल्दी हो रहे हैं, तो व्हाट वी से, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. हम क्या कहते हैं? कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है. दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री. वो कंट्री के प्रोडक्टिव पावर में ऐड होता है, लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. तो मैंने बार बार कहा कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड ट्रेनिंग, yields a return just like investment in physical capital. Dear students, हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में एक बेहतर रिटर्न मिले. ठीक उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट किया जाता है. इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड ट्रेनिंग. और क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? जिससे कि वो बेहतर रिटर्न दें. And this can be seen directly in the form of higher income. वो रिटर्न किस तरह का होगा? When people will be educated, people will be medically fit, healthy, and if they will be trained, उनका इनकम जो है वो हायर हो जाएगा. और अगर उनका इनकम हायर हुआ तो ये किसी कंट्री के इकोनॉमी के लिए बेहतर है, बिकॉज दे विल एड मोर एंड मोर टू द नेशनल इनकम. और एक चीज और है कि इफ पीपल विल बी एजुकेटेड, healthy and trained, then their productivity will be higher, their earning will be higher. और अगर प्रोडक्टिविटी और अर्निंग हायर होगा तो उस कंट्री के इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई इन मेनी कंट्रीज इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन इट्स पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मेडिकल केयर एंड ट्रेनिंग. देन I have given one example for that. It is the source of planning commission that India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि कैसे इनपुट का जो अगर बहुत बेहतर नॉलेज हो और टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव्ड कर दिया जाए तो ये स्कैर्स लैंड रिसोर्सेज से भी बहुत सारा प्रोडक्टिविटी करा सकता है. एंड वेरी गुड एग्जाम्पल इज ग्रीन रेवोल्यूशन. India's IT revolution, information and technology revolution, is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. IT revolution ये शो करता है कि ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है और इसी ने ह्यूमन कैपिटल को मटेरियल, प्लांट और मशीनरी इन सबसे ऊपर की पोजीशन पे रखा है. तो इफ पीपल आर एजुकेटेड, पीपल आर हेल्दी, पीपल आर ट्रेन्ड, देन द पॉपुलेशन विल बी असेट फॉर द कंट्री. और वो असेट क्यों होंगे? बिकॉज दे विल अर्न हायर इनकम.
दे विल बी मोर प्रोडक्टिव, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. यू जस्ट कंपेयर, मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूं. जस्ट कंपेयर टू पर्सन, है ना. जस्ट कंपेयर टू पर्सन, वन पर्सन इज ए एंड अनदर पर्सन इज बी. ए इज not educated, A is unhealthy, and A is not skilled, not trained. Now come to B. B is educated, healthy, and trained. So now please tell me which one will earn higher? Which one will be more productive? Definitely B. B will be more productive. B's income will be higher. So just suppose if in any country all people are educated, trained and healthy, then they will earn higher. Their productivity will be higher. And that's why that country will be more developed. So like this, there are many examples. So just try to understand how much important is education, medical care and training to make any population asset rather than liabilities. So I have one story. I have already explained, but I am repeating because today is revision period. So just see the example. The story of Sakal. So dear students, there were two friends, विलास and सकल. देखो, थ्रू दिस स्टोरी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग किसी भी इंसान की लाइफ बदल देती है. कैसे वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, कैसे उसकी इनकम हायर हो जाती है. तो हम लोग कंपेयर करेंगे स्टोरी ऑफ सकल और विलास से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सकल. देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सेमापुर. दोनों सेमापुर में रहते थे. सकल वॉज ए 12-year-old बॉय. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. वो अपनी मदर को डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता था. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. वो उन दोनों को भी देखभाल करता था. His uncle Shyam had passed away. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. उसके जो अंकल थे, he was matric passed, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था. That's why he was sitting idle. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. बूटा और शीला दोनों चाहते थे कि सकल को पढ़ा दें. They forced him to join the village school, which he soon joined. उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्स किया कि वो विलेज स्कूल ज्वाइन कर ले. उसने ज्वाइन कर लिया. He started studying and completed his higher secondary examination. उसने पढ़ना शुरू किया और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसने कंप्लीट कर लिया. His father persuaded him to continue his studies. उसके पिता ने परस्यूड किया कि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करे. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. क्या किया उसने? उसने एक लोन लिया सकल के लिए जिससे कि वो कंप्यूटर की पढ़ाई कर सके. सकल वॉज मेरिटोरियस, बहुत पढ़ने में अच्छा था, एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग. वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड था और मेरिटोरियस चाइल्ड था. So with great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in private firm.
जैसे उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने क्या किया, एक नए तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। और उस सॉफ्टवेयर से उसकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, कंपनी की सेल इंक्रीज कर गई। उसके बॉस ने इसको एक्नॉलेज किया, उसके सर्विस को एक्नॉलेज किया और उसको प्रमोशन से रिवार्ड किया, उसको प्रमोट कर दिया। इट वॉज द स्टोरी ऑफ सकल। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग दूसरी स्टोरी देखते हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टोरी ऑफ विलास। Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. विलास जो है 11-year-old boy था, सकल के ही गांव में रहता था। विलास फादर महेश was a fisherman. विलास के फादर महेश एक फिशरमैन थे। He passed away when he was only 2 years old. जब विलास केवल 2 साल का था तो उसके फादर जो है वो he passed away, वो नहीं रहे। His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. उसकी जो मदर थी गीता, वो फिश को सेल करके अपनी फैमिली चलाती थी। She bought fish from the landowner's pond and sold it in nearby mandi. क्या करती थी वो लैंड ऑनर्स के पॉन्ड से फिश परचेस करती थी और मंडी में जाकर उसको सेल कर देती थी। She could earn only rupees 150 a day by selling fish. एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपीज अर्न कर पाती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विकास क्या हो गया, आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, मरीज हो गया। His mother could not afford to take him to the doctor. लेकिन उसके मदर की इनकम इतनी नहीं थी कि वो जाकर उनको डॉक्टर को दिखा सके। He could not go to school either. वो स्कूल भी नहीं गया। He was not interested in studies. वो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं था। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. वो क्या करता था, अपनी मदर को कुकिंग में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई को देखरेख करता था। After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. कुछ समय बाद क्या हुआ, उसकी मदर बीमार पड़ गई और अब घर को देखने वाला कोई नहीं था। There was no one in the family to support them. कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। विलास too was forced to sell fish in the same village. क्या करना पड़ा विलास को, विलास को भी वही काम करना पड़ा, यानी फिश को सेल करना पड़ा सेम विलेज में। और लाइक हिज मदर, अपनी मां की तरह ही उसकी भी इनकम जो थी वो बहुत मीगर थी, बहुत कम थी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टोरीज। आपने देखा होगा कि एक स्टोरी में, स्टोरी ऑफ सकल, जब उसको एजुकेट किया गया और चूंकि इसको एजुकेट किया गया तो उसने अपने हाइजीन का ख्याल रखा, वो हेल्दी रहा और साथ में उसके फादर ने उसके लिए लोन लेकर उसको कंप्यूटर कोर्स करा दिया। तो यानी उसको ट्रेंड भी कर दिया, उसको एजुकेट कर दिया, उसको मेडिकल केयर, वो हेल्दी था, हाइजीनिक था क्योंकि वो एजुकेटेड था, और उसको ट्रेन कर दिया कंप्यूटर में। इसका क्या फायदा हुआ, उसको फर्म में जॉब मिल गई और चूंकि उसने कंप्यूटर सीखा था तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया एंड दैट सॉफ्टवेयर हेल्प्स अ लॉट टू हिज कंपनी। बॉस एक्नॉलेज्ड हिम एंड रिवार्डेड हिम एज प्रमोशन। बॉस ने उसके नॉलेज को एक्नॉलेज किया
और उसको प्रमोट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसकी इनकम जो है वो हायर हो गई। अब सेम हम उसको कंपेयर करते हैं विलास से। व्हाट हैपेंड विथ विलास? विलास वाज अनेबल टू गेट एजुकेशन। In the case of Vilas, he was unable to get education and he was not interested actually. That was also one reason. Then he was not medically fit. He became the patient of arthritis. He had not any training. So what happened with him? He started the same job what his mother does. And when his mother fell sick, he started the same. And his income was also meager like his mother. उसकी इनकम कम होती गई। तो ये समझने की बात है कि when investment is made in terms of education, medical care and training, then people become more productive, they earn higher and they become or they actually term as asset for an economy rather than liability. एक और एग्जांपल बहुत अच्छा है, एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। A child too with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. देखो, अगर कोई छोटा बच्चा है और अगर उसके एजुकेशन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, उसके हेल्थ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, तो जब वो एजुकेटेड हो जाएगा, फ्यूचर में हेल्दी हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसकी इनकम हायर होगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और वो सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। डू यू नो वाई दे स्पेंड अ लॉट? Because they have realized the importance of education for themselves. क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को, और दैट्स वाई दे स्पेंड अ लॉट ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो हाइजीन के लिए कॉन्शियस होते हैं, और इसका फायदा क्या होता है कि वो हेल्दी रहते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। वो हमेशा ख्याल रखते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन के नीड्स को और उसके हेल्थ के, गुड हेल्थ के नीड्स को। तो एक तरह का साइकिल, वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना? अगर वो एजुकेटेड हुए, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। फिर जब उनके बच्चे बड़े होंगे, वो एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। इस तरह से लोग एजुकेटेड होते जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी होते जाते हैं। और एट द सेम टाइम अगर उसको एजुकेट नहीं किया, उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं समझाया, हेल्दी नहीं रखा, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो ही विल बी अनहेल्दी, विल बी अनएजुकेटेड, तो डेफिनेटली उसकी इनकम जो है वो लोअर हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है कंट्री का, कंट्रीज लाइक जापान। यू नो अबाउट जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे देश जो हैं वो अपने पॉपुलेशन में, अपने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जापान जैसे कंट्रीज के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, दीज कंट्रीज आर रिच। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स ना होने के बाद भी ये कंट्रीज क्या हैं? दे आर डेवलप्ड, दे आर रिच। दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। उनको जिस भी नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होती है वो उसका इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि आखिर ये कंट्रीज रिच कैसे हो गए? हाउ दे बिकम डेवलप्ड? वो इसलिए बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ।
उन्होंने अपने लोगों पे बहुत खर्च किया है, अपने लोगों को एजुकेट किया है, उनको हेल्दी बनाया है। एंड दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। और ये क्या करते हैं, जब ये लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका बेहतर यूज करते हैं, लाइक लैंड एंड कैपिटल। So efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich, developed. तो efficiency और technology जो उन लोगों ने बनाई है उसकी वजह से उनका देश जो है वो rich और developed है। And when they are able to make efficient use of resources and technology, when they will be educated, when they will be healthy, when they will be trained. क्लियर? तो इफ एनी पॉपुलेशन, अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स को या पॉपुलेशन को अगर आपको उस इकोनॉमी के लिए असेट बनाना है तो वी हैव टू एजुकेट देम, वी हैव टू गिव देम मेडिकल फैसिलिटीज, वी हैव टू मेक देम हेल्दी एंड वी हैव टू ट्रेन देम, देन द कंट्री विल बी रिच एंड डेवलप्ड। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर रही है ना? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एजुकेट ऑल द पीपल, बहुत सारे प्लान्स बनाए, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, एंड देयर आर मैनी, मिड डे मील, फ्री एडमिशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स, एवरीथिंग। व्हाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट? बिकॉज टू मेक इट्स पॉपुलेशन एजुकेटेड। देखो, अगर कोई एजुकेटेड होगा तो बहुत चांसेस है कि वो हाइजीन का बहुत ख्याल रखेगा, एंड देन इफ दे विल बी हाइजीनिक दे विल बी हेल्दी, और इफ दे गॉट ट्रेनिंग्स, इफ दे आर स्किल्ड, देयर इनकम विल बी हायर। तो ये क्लियर हो गया कि अगर किसी पॉपुलेशन को, चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन हो, अगर उनको बेहतर रिटर्न देना है, अगर उस कंट्री को रिच होना है, तो अपने पॉपुलेशन को दे हैव टू मेक देम एजुकेट, हेल्दी एंड ट्रेन्ड। उसके बाद वी हैव टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स लाइक economic activities by male and female. So dear students, there are three main economic activities which I have already explained. आज मैं उसको और शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, लाइक विलास एंड सकल, पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। चाहे वो विलास हो, चाहे वो सकल हो, तो लोग अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। जैसे देखा कि विलास जो है वो फिश बेचता था एंड सकल गॉट ए जॉब इन द फार्म। तो जितने भी एक्टिविटीज हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर? They are termed as, how many activities are there? They are termed or they are classified into three main sectors. जितने भी तरह के एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। Which 3 sectors? So first one is प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर और टर्शियरी एक्टिविटीज। तो जितने भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सबको इन तीनों में क्लासिफाई कर दिया गया। क्या क्या? प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज, और टर्शियरी सेक्टर और टर्शियरी एक्टिविटीज। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आखिर है क्या क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज में है क्या क्या। सो प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स
Primary sectors includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सेट्रा. तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, देन दैट इज द वर्क ऑफ प्राइमरी सेक्टर. दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग and quarrying are the example of primary sector. Now come to secondary sector. Manufacturing is included in the, and one more thing for the primary sector, because agriculture is main activity of primary sector, that's why this sector is also known as agriculture and related sector. ये याद रखिएगा, primary sector is also known as agriculture and related sector. Now come to secondary sector. So manufacturing is included in the secondary sector. Manufacturing, when we convert natural resources into other useful commodity by manufacturing, then that is the activity of secondary. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को किसी दूसरे कमोडिटी में चेंज कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. फॉर एग्जांपल, अगर केवल शुगर केन यूज कर रहे हो तो दैट इज द वर्क ऑफ प्राइमरी सेक्टर. लेकिन जैसे शुगर केन से शुगर बनाया, तो शुगर केन से शुगर आप कहां बनाओगे? दैट यू विल मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज. तो दैट इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. या फिर अगर आप कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. बट एज वी विल मेक क्लॉथ बाय कॉटन, कैसे बनाएंगे? फैक्ट्रीज में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे. दैट विल बी वर्क ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. सो मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर डन इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ कम टू टर्शियरी सेक्टर. Dear students, for the advancement or development of primary and secondary sector, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए many services are required. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए को डेवलप करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल, सपोज करो प्राइमरी में क्रॉप ग्रोन कराया. अब क्रॉप को ग्रोन कराने के बाद उसको वहां से मार्केट भेजना होगा सेल करने के लिए. किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. आपको मोबाइल पे बात करनी होगी उसको सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए. क्या हो जाएगा वो? कम्युनिकेशन. आपको ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी. आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग. सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, many services are required. Those all come under tertiary sector. So trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. Because in tertiary sector services are included, that's why this sector is also known as सर्विस सेक्टर. अब ये तीनों क्लियर हो गया. प्राइमरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड टर्शियरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. सो all the activities, all the economic activities are classified into three main sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. So dear students, today we revised few topics of the chapter. It is my humble request to all my students, please read all the topics carefully and just try to understand the aspect of topics.
Understand? So please read each and everything. Please read question and answer. And in next period, again I will revise the chapter, the other topics which are not explained by me today. So I will explain it in next period. Till then, have a nice day. Thank you.